Hi everyone, I am Chiranshi and welcome back to this platform. So, as you must have seen from the title, today's topic is efficiency versus effectiveness from Unit 1 Business Studies, Nature and Significance of its Management. So, this particular unit of this whole chapter, many students think that this is not very important, but mind that even during my class 12th, CUT UG, bachelor's, even in masters, this small portion of management has been useful everywhere. This is very small portion which is very crucial because the difference between these both terms are useful in so many subjects, so many areas of study in entire commerce. So बहुत easy है, बहुत simple है. Don't underestimate this. So before getting into the textbook and the theoretical portion, as you know, if you have seen the last video, the part 1 of this particular series, then you must know that I do not go directly to the textbook and terminologies. I get there through an example. So for today's video, this is the example that you can see on your screen. This similar example has also been given in your NCERT books, so I refer to that completely, as I always say that in business studies, NCERT is the Bible. So if you read that 3 times, 4 times, multiple times, nobody is stopping you from getting those 100 on 100 in business studies. Even I scored 200 out of 200 in business studies during my CUET. So I only referred to business studies for my concept clarity and learning portion, and definitely I solved questions, MCQs using some other guides and references books. That is a topic for some other video. Coming on to today's video, I have given the example that there are 2 people that I have given target to of creating 5,000 t-shirts by the end of the day. EOD means end of the day. So I have given the target that you have to create 5,000 units of production because you are working in some textile industry for example. तो 2 लोग हैं, दोनों ने अपना अपना काम किया, दोनों को सेम टारगेट दिया गया था कि आज रात तक तुम्हें 5-5 हज़ार टी शर्ट्स अपनी प्रोड्यूस करनी है विद द सेम रिसोर्सेज गिवन टू बोथ ऑफ देम. रिसोर्सेज में क्या आएगा? मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी ओनली, एंड obviously the raw materials, cotton and stuff like that is not important. So 2 people, person A, person B. person A ने क्या किया, दोनों की कहानी सुनेंगे, दोनों की परफॉर्मेंस सुनेंगे. person A ने क्या किया, उन्होंने 5,000 टी शर्ट्स बना दी. चलो वेल एंड गुड, जो टारगेट दिया था वो बना दिया, बट ही यूज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी टू इंक्रीज द मशीन पावर. उन्होंने क्या किया, कंपटीशन में जीतने के लिए वो करते हैं ना कि भाई रिसोर्सेज में ही कुछ ना कुछ इनपुट्स में ही गड़बड़ कर दिया. तो उन्होंने क्या किया कि 5,000 का जो टारगेट था वो तो कंप्लीट कर दिया, बट उन्होंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, एक्स्ट्रा इनपुट्स, एक्स्ट्रा व्हाट यू से रिसोर्सेज यूज़ करे टू प्रोड्यूस दोज 5,000 टी शर्ट्स, ताकि वो जल्द से जल्द बन जाए और टारगेट मेरा ख़त्म हो जाए. नाउ इन दिस एग्जाम्पल बस आपको देखना है, समझाऊंगी मैं अभी 2 मिनट में. अभी आपको बस मैं बता रही हूँ कि ये जो पर्सन था ये इफेक्टिव था लेकिन एफिशिएंट नहीं था. अब हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो 2 टर्मिनोलॉजीज है बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है. तो ये जो पर्सन था वो इफेक्टिव था, उसने अपना काम किया, लेकिन रिसोर्सेज उसने ज़्यादा यूज़ कर लिए, तो वो एफिशिएंट नहीं था. ठीक है, समझते हैं अभी आगे. पर्सन बी, उसने 5,000 की जगह सिर्फ 4,000 टी शर्ट्स प्रोड्यूस करी बाय द एंड ऑफ द डे. इट मीन्स ही डिड नॉट कंप्लीट हिज एंटायर टारगेट, बट अ गुड थिंग दैट ही डिड नॉट यूज एनी एक्स्ट्रा इनपुट्स. जितनी इलेक्ट्रिसिटी उनको दी गई थी उतनी ही उसने यूज़ करी, लेकिन ऑनेस्टी की वजह से वो कम प्रोड्यूस कर पाया. तो इस केस में दिस पर्टिकुलर पर्सन बी इज़ नॉट इफेक्टिव, क्योंकि उसने काम नहीं किया लेकिन उसने रिसोर्सेज बचा लिए, उसने रिसोर्सेज खराब नहीं करे. तो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 एग्जाम्पल्स लेट मी नो कि आप लोगों को क्या समझ आ रहा है कि पर्सन ए इफेक्टिव क्यों है, पर्सन बी इफेक्टिव क्यों नहीं है,
and vice versa for the efficiency. I'll give you 30 seconds to answer this in the comment section below. All right. So, इस केस में क्या हुआ कि एक बंदा इफेक्टिव था, एक बंदा एफिशिएंट था, ठीक है. अब एक थर्ड पर्सन है हु इज़ नोन एज द पर्सन मास्टर. पर्सन सी नहीं रखा मैंने, पर्सन मास्टर बना दिया, ठीक है. अब इसने क्या किया, इसने 5000 टी शर्ट्स बनाई जैसे टारगेट दिया गया था, और इसने कोई एक्स्ट्रा इनपुट्स यूज़ नहीं किए. इसमें वो इफेक्टिव भी हुआ, एफिशिएंट भी हुआ. कितनी अच्छी पोजीशन लग रही है ना, कि दोनों चीज़ें वेल गुड है ना. तो ही इज़ द विनर. नाउ हमने एग्जाम्पल तो देख लिया, डिफरेंस तो बताओ इफेक्टिव और एफिशिएंट का. नाउ कमिंग ऑन टू दिस, इस पर्टिकुलर स्लाइड से इन 2-3 पॉइंट से आपको पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी फटाफट देखते हैं. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो टास्क है उसको डन कर दो, ठीक है. एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी हम टर्म यूज़ करते हैं, वो उसका मतलब एफिशिएंसी ही होता है. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है, एक ट्रिक बताती हूँ. इफेक्टिवनेस में टी आता है ना, तो मतलब टास्क, ठीक है. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ they care about the task. They do not care about the using resources. Resources waste हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं. उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि हमारा जो टारगेट हमें दिया गया है हम वो कंप्लीट कर रहे हैं, दैट्स इट. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्कूल्स में भी देखते हैं, प्रोजेक्ट दिया मैंने आपको सपोज. अब 2 बच्चे हैं, एक ने तो बहुत अच्छी तरीके से खुद दिमाग लगा के सोच समझ के प्रोजेक्ट करा और सबमिट भी कर दिया, उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज है. एक पर्सन दूसरी जगह एक दिन पहले, सबमिशन से एक दिन पहले आकर किसी का प्रोजेक्ट लेकर अपने में कॉपी कर दिया, चीटिंग करके, बस फॉर द सेक ऑफ सबमिटिंग द प्रोजेक्ट एंड गेनिंग द मार्क्स. उसने ये चीज़ की, उसे कोई सब्जेक्ट नॉलेज नहीं आया. तो जो सेकेंड पर्सन है जिसने चीटिंग करके किया, उसने अपना काम करने का ऑब्जेक्टिव रखा. उसने ये नहीं सोचा कि उसकी नॉलेज नहीं बढ़ रही है. लेकिन जो फर्स्ट पर्सन ऑन द अदर हैंड है, उन्होंने अपना काम भी पूरा करा और उन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज भी अपनी इक्वली गेन करी. तो इस तरीके से समझिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को. इफेक्टिवनेस से सिर्फ काम से मतलब है, इनपुट्स जो रिसोर्सेज जा रहे हैं, एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है. इफ अ पर्सन हैज़ कंप्लीटेड हिज टास्क, ही इज इफेक्टिव, दैट्स इट. फिर एफिशिएंसी पे अगर आते हैं, एफिशिएंसी का कंसर्न टास्क नहीं है. टास्क की जो प्रायोरिटी है वो सेकेंडरी है. पहले वो देखते हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम से मिनिमम इनपुट लगाकर मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकालो, कि कम से कम हमारे इनपुट्स लगे और मैक्सिमम रिटर्न्स मिले हमें. तो दिस इज एफिशिएंसी, कि तुम कम से कम रिसोर्सेज यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हो. दैट इज हाउ मच प्रोडक्टिव यू आर, ठीक है. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. आई होप अब नहीं भूलोगे इस चीज़ को. इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर योर एग्जाम, ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है. एंड आई ऑलवेज से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी होते हैं. देन इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैनेजर को मेंटेन करना चाहिए बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, की वॉट एवर स्ट्रैटेजीज ही फॉर्म्स, वॉट एवर वर्क ही डज, हाउ एवर ही मैनेजेस हिज टीम, उन्हें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि काम भी हो, काम तो ख़त्म करना ही है, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो तो फिनिश करना ही करना है. बट ऐसा ना हो कि काम ख़त्म करने के चक्कर में यू यूज़ एक्स्ट्रा अननेसेसरीली रिसोर्सेज. तो आपको रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करना है, कम से कम इनपुट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल कर देना है, और काम तो ख़त्म करना ही है. तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ. दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. दीज आर द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी. टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एक मैनेजमेंट में एक अच्छा बैलेंस के लिए, अ गुड मैनेजमेंट मस्ट हैव अ बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. दिस इज वन पैराग्राफ आई टुक फ्रॉम द एनसीईआरटी. ऑब्वियसली आई विल हैव फर्दर लेक्चर्स ऑफ डिटेल्ड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, बट अभी के लिए यही रेलिवेंट है
कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू अचीव द गोल्स इफेक्टिवनेस. देखिए, अचीव द गोल्स के ब्रैकेट में लिखा है इफेक्टिवनेस, मतलब कि अपने गोल्स अचीव करने, अपने टारगेट्स अचीव करने हैं विद मिनिमम रिसोर्सेज एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल. विद मिनिमम रिसोर्सेज, और ब्रैकेट में लिखा है एफिशिएंसी. देख रहे हो आप? तो रिसोर्सेज के मामले में जब भी कुछ क्वेश्चन आए तो एफिशिएंसी, टास्क डन, गोल अचीवमेंट के रिलेटेड कुछ भी आए तो इफेक्टिवनेस. while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. ठीक है, this is very important. I hope today's lecture was helpful for you all. Stay tuned for further lectures. I'll cover more topics of this particular unit. There is an entire series and playlist on the channel itself, so you can watch them. Thank you so much and have a great day learning.